Namaste everyone. I Meghna Mehta and my co-host Komal Mehta warmly welcomes you in the celebration of 26th January. We, Gadi family, every year celebrates 26th January with different kinds of competitions like poster making, sports and many more. But due to this pandemic, we announced online competition of singing, dancing and elocution to continue our legacy. So today we will show a performance of the participants along with Constitution documentary. As well as the result of this competition will be declared on 26th January at our campus. चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ओ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सो दर्द सहे, महफूज रहे तेरी जान सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा खुद बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जब छेड़ा मल्हार किसी ने झूम के सावन आया, आग लगा दी पानी में जब दीपक राग सुनाया। सात सुरों का संगम है जीवन गीतों की माला, हम अपने भगवान को भी कहते हैं बांसुरी बांसुरी वाला। ये मेरा इंडिया, आई लव इंडिया, वतन मेरा इंडिया, सजन मेरा इंडिया। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, आई लव इंडिया, I love India, I love my India। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत
किस्मत पे मैं कितना नसीबों वाला था। ओ वतना में मेरे वतना वे तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है की आरज़ू। बलिदान का सपना जब सच हुआ, देश तब भी आज़ाद हुआ। आज सलामी करे उन वीरों को, आज सलामी करे उन वीरों को जिनकी शहादत से ये भारत गणतंत्र हुआ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो। Myself Pritika Parmar. Today I feel very honored as I got a great opportunity to say something on Republic Day. 26th January 1950 was the day when Constitution of India came into effect, replacing Government of India Act 1935 as governing document of India. Today we are celebrating 73rd Republic Day of India. Our former Minister of Justice and Law, B.R. Ambedkar Sahib, once said, Constitution is not a lawyer document, it is the vehicle of life. Its spirit is always the spirit of age. India is a democratic country. It has no king or queen to rule, although the people here are the rulers. We have right to choose our best leader to lead the country in right direction. Our leader should have enough quality to think in the favor of his country. He should think equally for all the cities, villages, for our better development without any discrimination. The great leaders of India like Mahatma Gandhi ji, Sardar Vallabhbhai Patel ji, Bhagat Singh ji fought continuously against the Britishers. It is because of them we are living independently. We can never forget their dedication towards our country. Government of India has conducted and are still conducting many programs for the better development of India. Our father of nation, Mahatma Gandhi ji, wanted to see a clean India. So, to fulfill this dream, our Prime Minister Narendra Modi ji started Swachh Bharat Abhiyan on 2nd October 2014. Under this campaign, government has constructed more than 90 million toilets in India in just 5 years. Many other steps have been taken to make this campaign a great success. आओ भारत के हर एक कोने को रंग दे, आओ भारत के हर एक कोने को रंग दे, स्वच्छता के रंग से रंग दे. Along with this campaign, there is something we need to clean up from our India. Our country is still fighting from crime, corruption and violence. Again, everyone needs to be together to save our country from such a slavery, as it is holding back our progress and development. Dr. Abdul Kalam said, if a country is a corruption-free and with a beautiful mind, it is because of only 3 prime members. They are a father, a mother and a guru. So, we have to come together for this thing. We have to make our country corruption, crime and violence free. Creative minds are the future of any country. India has such a creative minds that they can make India very, very progressive and they can develop India. Now I would like to conclude my speech by Gandhiji saying, if you want to change the world, first change yourself. Thank you. Jai Hind.
संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना। सलाम दे मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तो उसे उसके बेटे का नाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। હેપી રિપબ્લિક ડે એવરીવન। આજનો દિવસ આપણા માટે બહુ મહામૂલ્ય છે। આજના દિવસે આપણને આપણું બંધારણ મળ્યું હતું। દેશને ચલાવવા માટે એક રૂલ બુકની જરૂર હતી અને તે રૂલ બુક એટલે આપણું બંધારણ। એમાં એવું છે કે આપણા દેશને આઝાદી તો મળી ગઈ, પરંતુ આપણા દેશ પાસે જે કાયદા બ્રિટિશરો દ્વારા બનાવવામાં આવ્યા હતા ને, એ ન તો આપણા દેશની પરિસ્થિતિને અનુકૂળ હતા અને ન તો આપણા નાગરિકો માટે। એટલા માટે આપણે નિર્ણય લીધો કે આપણે આપણા દેશની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખી અને નાગરિકોની જરૂરિયાત અનુસાર કાયદાઓ બનાવીશું અને તે કાયદાઓનું લેખિત સ્વરૂપ એટલે આપણું બંધારણ। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन
मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। ओ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुंह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आँख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं। मैं 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Everyone, I'm Sweta Sharma from Engineering Department, and first of all I wish you a very happy Republic Day, and I hope you all are safe. Today we are here to talk about the architect of the Indian Constitution, Dr. B.R. Ambedkar. But first of all, let's know some details about the Indian Constitution. Before 26th January, 26th November is a historic day for India. Why? Because on this day, 26th November 1949, our Indian Constitution was adopted by the Assembly. But it came into force on 26th January 1950. In this way, today 72 years have been completed of National Constitution Day. Indian Constitution was made by hard work of 2 years, 11 months and 17 days. After the implementation of the Indian Constitution, our society got a fair justice system and the citizens got their fundamental rights and their duties and responsibilities as a citizen of India. Dr. Bhimrao Ambedkar is the architect of the Indian Constitution, and he was appointed as the chairman of the drafting committee of the Indian Constitution. He believed that it was very important
to equalize the differences between different classes. Otherwise, it will be very difficult to maintain the unity of the country. So, he emphasized on different religions, castes, and classes. Ambedkar introduced the reservation system to create the social balance among the classes. Our Indian Constitution is world's largest handwritten constitution with 448 articles, 12 schedules, 5 appendices and 18 amendments. Ambedkar was selected as the chairman of the drafting committee because of his political ability and legal proficiencies. Let's have a look at some most important contributions of Dr. B.R. Ambedkar. He became the first law minister after the independence, and he made a constitution keeping in view of every class and caste in our country. Dr. B.R. Ambedkar constructed the whole Indian Constitution, so he is called the architect of the Indian Constitution, which came into force on this day in year of 1950. Dr. Ambedkar spent his whole life fighting for the rights of the poor people from the exploited sections of our country. He struggled against social evils and untouchability throughout his life. He said that he had knowledge of 9 languages and he had received 32 degrees from different universities. He was awarded the Bharat Ratna, India's highest civilian honor. He was said the greatest in the world by Columbia University, and at the same time Oxford University called him the changemaker. Ideals like B.R. Ambedkar makes us feel proud to be an Indian citizen. So this was about the most important person in the making of Indian Constitution, Dr. B.R. Ambedkar. He also said that one cannot create a history if they don't know the history. So if you want to create a history, just have a good knowledge of the previous history. So once again, a very happy Republic Day to all of you. Thank you. नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए हम सोए नहीं कई रातों से जाने वतन सो जाने बुझे हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे अस्पताल में लोग इस बीमारी से अकेले लड़ते वक्त अपने परिवार का साथ चाहते हैं, पर ऐसे हालातों में हम ही हैं उनके डॉक्टर, हम ही उनका परिवार, हम ही उनकी हिम्मत और हम ही उनकी उम्मीद। मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया बीमार है जो किस धर्म का है हमसे न कभी ये भेद हुआ सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ जवान अपनी जान की बाजी लगाकर सरहद की सीमा रेखा की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन भारत की जीवन रेखा की जिम्मेदारी अब हमारे हाथ है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। इस कोरोना के डर से लोग सिर्फ एक टच से घबराते हैं। हम डॉक्टर्स हैं,
रोज मौत से हाथ मिलाकर आते हैं। सुना था डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं, पर आज ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस से लड़ने की इस चुनौती की घड़ियों में भगवान ने ही डॉक्टर्स का रूप ले लिया। બંધારણ ઘડવા માટે બંધારણ કમિટીની રચના કરવામાં આવી અને આ બંધારણ કમિટીમાં ટોટલ 389 સભ્યો હતા। આ 389 સભ્યોમાંથી 15 મહિલા પ્રતિનિધિ હતા, 292 જેટલા બ્રિટિશ હિંદના પ્રતિનિધિ હતા, એટલું જ નહીં પરંતુ 92 જેટલા દેશી રજવાડા હતા અને 4 કમિશનર હતા. So there were total 389 members in our constitution committee. સ્વતંત્ર ભારતના બંધારણ ઘડવા માટે ટોટલ 23 કમિટીઓની રચના કરવામાં આવી. તેમાંથી 12 કાનૂનને લગતી કમિટીઓ હતી અને 11 પ્રક્રિયાને લગતી કમિટીઓ હતી. બંધારણ સભાના અધ્યક્ષ ડોક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ હતા. એટલું જ નહીં પરંતુ બંધારણ ઘડવાની જવાબદારી એ ભારત રત્ન ડોક્ટર બાબા સાહેબ ભીમરાવ આંબેડકર પર હતી. સુજલામ સુફલામ મલયજ શીતલામ સસ્ય શ્યામલામ માતરમ. સુજલામ સુફલામ મલયજ શીતલામ સસ્ય શ્યામલામ માતરમ. વંદે मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम. एहसास थोड़ा तो जगाए अपने दिलों में यारो. वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम. क्या नाम है अपना जहाँ में खड़े हैं कहाँ पे हम. वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम. है हमें जाना कहाँ और चले हैं कहाँ पे हम. हमसे पूछे है मादरे वतन. वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम. सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे. सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे. जाना है तारों से आगे अब ना रुकेंगे हम. वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम. एक नई सुबह जगाए सारे जहाँ पे हम. वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम. हिम्मत करे आगे बढ़े हम नए रास्तों पे हम. सारी दुनिया विवाद है वतन. वंदे मातरम 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 वंदे मातरम. वंदे मातरम 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 वंदे मातरम. एहसास थोड़ा तो जगाए वंदे मातरम वंदे मातरम. क्या नाम है अपना जहाँ में. वंदे मातरम वंदे मातरम. एक नई सुबह जगाए वंदे मातरम वंदे मातरम. इंतजार है जहाँ को. अपनी जान के दुश्मनों को अपनी जान कहते हैं. हम अपने जान के दुश्मनों को अपनी जान कहते हैं. मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं. हिंदुस्तान कहते हैं. दुनिया में दिखाई दे उसे खामोशी कहते हैं और आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं. जो ये दीवारों का सुराख है, जो ये दीवारों का सुराख है, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं. रोशनदान कहते हैं. मैं MBA डिपार्टमेंट से सुजाली सोचित्रा आज देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम के बारे में कुछ चर्चा करना चाहूंगी. आजादी
आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। यूं तो आजादी की लो 1839 में ही जल चुकी थी, जो 1945 में हमारे देश को आजाद कराई। मैं प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों के साथ स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस चुके थे, तब रंगते बसंती चोलों की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उसके वंदे मातरम के नारों से 5-5 डिग्री में आने वाला तूफान अंग्रेजों की शासकों में तूफान पैदा कर जाता था। तब लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, क्योंकि वो अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि वो उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 35 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग खो देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नोनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, एक ऐसा विस्फोट हुआ कि न जाने कितने जिस्मों की बोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहेब, आपके लिए तो एक आदमी मरा है, परंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। वाले हालात हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और पत्र लिखा करती थी कि पुत्र मेरे ना घबरा जाना, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। उस दौर देश बलिदान मांगता था, देश फांसी चढ़ जाने को कहता था, मर जाने को कहता था, परंतु आज देश मर जाने को नहीं कहता, ना बलिदान देने को कहता है। परंतु मेरे विचारों में अगर कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी निष्ठा और पूरी लगन से करे तो वो ही सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप या फेसबुक के डीपी को त्रिरंग रंग से रंगना ही देशभक्ति है। और अगर आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लहराना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा जो ट्रैफिक की छाव में नंगे पांव में तिरंगा बेच रहा है, क्या वो उसकी देशभक्ति है? वो उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट के भूख की शक्ति है जो इसे ऐसा करने पर मजबूर कर देती है। क्योंकि ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना वो शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं। पेट के भूखे होते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने समाज, अपने परिवार, अपने देश के लिए कुछ कर जाना देशभक्ति है। और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान हमारी सच्ची देशभक्ति है, ताकि हर देशद्रोही समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करने पर भाई हड़काते हैं, जहाँ लड़कों से बात करने पर भाई हड़काते हैं, और वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के चर्चे घर में हंस कर सुनाते हैं। मैं बता दूं कि आज भी हम महिला सुरक्षा के बारे में 4थे नंबर पर आते हैं। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग, पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग। भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए, और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और सच्चा राष्ट्र प्रेम है। अंत में मैं इतना कहना चाहूंगी कि ना सरकार मेरी है, ना ये रब मेरा है। ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है। मुझे सिर्फ इस बात का गुरूर है कि मैं भारत देश की हूँ और ये भारत देश मेरा है। जय हिंद। मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा। ओ दे
देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तो। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वंदे शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। एहसास थोड़ा तो जगाए अपने दिलों में हम, वन्दे मातरम्, है हमें जाना कहाँ और चले हैं कहाँ पे हम, हमसे पूछे ये बात रे वतन। वन्दे मातरम्, બંધારણ ઘડવા માટે લગભગ 64 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચ થયો હતો. ઓ 64 lakhs? યસ, 64 lakhs. એટલું જ નહીં, પરંતુ આપણા દેશના બંધારણની રચના કરવા માટે 60 અલગ અલગ દેશોના બંધારણનો અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો હતો. આ ઉપરાંત આપણા દેશનું બંધારણ કાર્ય એ 11 અધિવેશન દરમિયાન પૂર્ણ થયું.
जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, खो रहा चैनो अमन, खो रहा चैनो अमन, मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। सूरज निकलता है पूरब की ओर से। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं रौनक पटेल की ओर से। अपनी बात की शुरुआत दो शब्दों के साथ शुरू करना चाहूंगा दोस्तों कि ये बात हवाओं को बताए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की है सदा ऐसा तिरंगे को दिल में बसाए रखना। कुछ ऐसी ही भावना हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, हर हिंदुस्तानी के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ये आज़ादी हमें भीख में नहीं मिली दोस्तों। ना जाने अपने कितने लाखों करोड़ों सैनिक भाइयों को खोए तब जाके ये आज़ादी हमें मिली है। मैं उन धर्म के ठेकेदारों से प्रतिशोध करना चाहूंगा, मैं उन धर्म के ठेकेदारों से प्रतिशोध करना चाहूंगा कि नफरत बुरी है ना पालो इसे, ये नफरत बुरी है ना पालो इसे, दिल में खलिस निकालो इसे, ना तेरा ना मेरा ना इसका ना उसका, ना तेरा ना मेरा ना इसका ना उसका, ये हम सबका वतन है बचा लो इसे, ये हम सबका वतन है बचा लो इसे। ना सरकार मेरी है ना ही रोब मेरा है, ना सरकार मेरी है ना ही रोब मेरा है और ना ही बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो दोस्तों बस इस बात का घमंड है कि मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। मैं मुस्लिम हूँ तू हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ तू हिंदू है दोनों इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूँ तू पढ़ ले कुरान, अपने तो दोस्त बस दिल में एक ही अरमान, एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। ये पेड़ ये पत्ते और ये शाखें, ये पेड़ ये पत्ते और ये शाखें भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब की शान में आप लोगों को सुनाना चाहूंगा दोस्तों। ना हिंदू दिखता था ना मुसलमान दिखता था, ना हिंदू दिखता था ना मुसलमान दिखता था, इसको तो इंसानों में इंसान दिखता था। हो गई आज खामोश दो आवाज सदा के लिए, जिसकी बातों में सिर्फ हिंदुस्तान दिखता था। एक सैनिक बोल रहा है सरहद पर कि किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ के आया हूँ, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ के आया हूँ, मैं मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ के आया हूँ। मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना भारत माँ, मुझे अपनी छाती से तू लगा लेना भारत माँ, क्योंकि मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ के आया हूँ। ए मौला शोहरत ना आता करना, ए मौला शोहरत ना आता करना, दौलत ना आता करना, बस इतना आता करना चाहे जन्नत ना आका करना। समय वतन की नोक पर जब कुर्बान होना हो, दिल में जज्बे हिंदुस्तान आका करना। मैं उस चिता की अग्नि हूँ जो जलती है कश्मीर में, मैं उस चिता की अग्नि हूँ जो जलती है मुंबई में। मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि आग लगी है देश में, और लगे आग इससे पहले तुम क्रांतिवीर मशाल जला दो, और आग लगाने वालों को तुम पहले आग लगा दो। टूटने और बिखरने का चलन मान लिया है, टूटने और बिखरने का चलन मान लिया है, हमने हालात को शीशे का बर्तन मान लिया है। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, गौर से सुनिएगा दोस्तों, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिरे, हमने वतन मांग लिया है। आखिर में दोस्तों बस इतना ही कहना चाहूंगा कि फना होने की इजाजत नहीं ली जाती, फना होने की इजाजत नहीं ली जाती, ये वतन की मोहब्बत जनाब पूछ के नहीं की जाती। जय हिंद जय भारत। I am Nodia Nisha from 3rd year BAMS. I representing speech on patriotism. भारत माता सबसे प्यारी सबसे ऊंची उनकी शान, गणतंत्र दिवस पर शीश झुका के करते हैं तुझे प्रणाम। આજનો દિવસ છે એ બધા જ સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓને યાદ કરવાનો જેઓએ પોતાનું પૂરેપૂરું જીવન એ દેશ માટે ખર્ચી નાખ્યું છે। મંગલ પાંડે, રાણી લક્ષ્મીબાઈ, સુભાષચંદ્ર બોઝ, લાલ, બાલ, પાલ અને એવા કેટલાય સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓને નમસ્કાર કરવાનો।
આજનો આ દિવસ છે હસતા હસતા એ દરેક જાબાઝને યાદ કરવાનું જે પોતે માતૃભૂમિની રક્ષા માટે, દેશ માટે શહીદ થાય છે. આ દિવસ છે ગર્વ અનુભવવાનું કે આપણો દેશ દુનિયાનો સૌથી મોટો લોકતંત્ર હોવા છતાં પણ, આટલી વિવિધતા હોવા છતાં પણ અહીં એકતા જોવા મળે છે. તો ચાલો આજે પ્રતિજ્ઞા લઈએ કે નરસ્ત પ્રભેદો મહાન ભારતો અહમ. જેન્ડર, કાસ્ટ, રિલિજન, મની, પાવર, આ બધાને લીધે જે આપણે વાડા પાડેલા છે એ બધાને આજે પડતા મૂકીએ અને લેટ અસ પ્લેજ નોટ ટુ પાર્ટિસિપેટ ઇન એની ઇનઇક્વેલિટી એન્ડ ટ્રીટ એવરી ભારતીય ઇક્વલી. આજે હું પ્રાચીન ભારતથી આધુનિક ભારતના એ તમામ દેશભક્તની વાત કરવા માંગુ છું જેઓની એકમાત્ર વિચારસરણી હતી કે જીના તો ઉસી દેશભક્ત કા જીના હૈ, जीना तो उसी देशभक्त का जीना है जिसने ये राज जाना है कि काम ही देशभक्त का स्वराज के काम आना है, स्वराज के काम आना है. આપણે વાત કરીએ તો પ્રાચીન ભારતની અંદર થયેલા દેશભક્તો મહારાણા પ્રતાપ, શિવાજી મહારાજ, રાણી લક્ષ્મીબાઈ, જેઓએ પોતાના પૂરેપૂરા જીવન દેશ માટે અર્પણ કરી દીધા છે. જેઓએ પોતાના જીવન ના મોજ મજા કે ભોગવિલાસની અંદર નથી ખર્ચેલા, પણ માત્ર ને માત્ર દેશ માટે ખર્ચી નાખેલા છે. ના માનો તો प्यारे इतिहास उठाकर देखो तुम, भारत की मिट्टी की कोई बात उठाकर देखो तुम, देशभक्ति की कथा का कोई पहरे उठाकर देखो तुम, वहाँ राणा और शिवाजी के संग्राम लिखे मिल जाएंगे, राणा के संगत का विस्तार लिखा मिल जाएगा, अरे मुगलों की छाती पर तुमको छाप लिखी मिल जाएगी, और राणा संचेतक की भी दाब लिखी मिल जाएगी, दाब लिखी मिल जाएगी. હવે આપણે વાત કરીએ એ દેશભક્તોની, એ વીર સપૂતોની કે જેઓના જીવનનું એકમાત્ર લક્ષ્ય હતું આપણા દેશને આઝાદી અપાવવાનું. કહેવાય છે કે જ્યારે પૂરેપૂરો દેશ ફિરંગીઓની ઝપેટમાં હતો, જ્યારે આખો દેશ અંગ્રેજોના હાથમાં ફસાયેલો હતો, ત્યારે આ જ દેશભક્તોએ રંગ દે બસંતીના એક અવાજ ઉપર પોતે ટોળે ઉમટી પડતા અને દેશભક્તિ માટે વંદે માતરમના નારા લગાવતા અને એ અંગ્રેજોના ખૂનમાં 5-5 ડિગ્રીના તુફાન લઈ આવતા. આ એ જ દેશભક્તો છે, આ એ જ ક્રાંતિકારીઓ છે કે જેઓએ વૃક્ષ રૂપી રહેલા અંગ્રેજોના ઝાડને કુહાડીના એક ઠાગાથી, ભલે નાનો તો નાનો કે મોટો તો મોટો, પણ દરેક ક્રાંતિકારી, દરેક દેશભક્ત, દરેક એ સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓએ આ વૃક્ષ જે અંગ્રેજો રૂપી હતું એને ધરાશાયી કર્યું છે. હવે આપણે વાત કરીએ એ વીર સપૂતોની કે જેઓ સરહદ ઉપર રહી ઋતુઓની પરવા કર્યા વગર પણ માતૃભૂમિની રક્ષા માટે દુશ્મનો સામે જજુમી રહ્યા છે. કે જ્યાં એમની માતા પણ એમને પત્ર લખીને કહે છે કે પુત્ર મેરે ના ગભરા જાના, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना. આ છે આપણા દેશભક્તોની માતાઓ. પરંતુ હવેનું ભારત પહેલા જેવું નથી રહ્યું. આ નવું ભારત છે અને આ નવા ભારતની પોલિસી છે કે ઘર મેં ઘुसेंगे भी और मारेंगे भी, ना रुकेंगे ना झुकेंगे, सामने चाहे छोटी छोटी आंख वाले होंगे या बड़ी बड़ी वाले, सबको धूल चटाएंगे अगर उनकी गलती होगी तो. આ છે આપણું નવું ભારત. આપણો ભારત મહાન છે કારણ કે એની દેશની સંસ્કૃતિ, સભ્યતા છે એ બધામાં જાણીતી છે. કેમ કે यहाँ घर आया हुआ मेहमान भी जान बन जाता है, हमारी सभ्यता और संस्कृति की पहचान बन जाता है. वो परंपरा सदियों की हमने आज भी निभाई है कि घर आने वाला मेहमान भी भगवान बन जाता है. ભારત દરેક મિત્રને મિત્ર જ ગણે છે, પણ જ્યારે કોઈ મિત્રના ભેષમાં દેશદ્રોહ મળી આવે, દેશદ્રોહી મળી આવે કે કોઈ દુશ્મન મળી આવે તો ત્યારે ભારત એને પણ જવાબ આપે છે કે અગર તું પરિંદા હે તો ये आसमान तेरा है, लेकिन अगर तू दरिंदा है तो ये स्मशान भी तुम्हारा है. अगर रहना है भाईचारे से तो रह इस दुनिया पर, वरना ये कब्र भी तुम्हारी और कब्रिस्तान भी तुम्हारा है. તો આજનો દેશ આપણને કોઈ લડી મરવા માટે કે ફાંસીએ ચડવા માટે નથી કહેતો, પણ આપણો દેશ બસ આટલું જ કહે છે કે સાચી દેશભક્તિ એ છે કે જ્યારે માણસ જે પણ વ્યવસાયની અંદર છે એ વ્યવસાયની અંદર એ પોતે પૂરી જવાબદારી, પૂરી મહેનતથી, પૂરી નિષ્ઠાથી કામ કરે તો એ પણ સાચા અર્થમાં દેશભક્તિ જ છે. જય હિન્દ.
વર્ષ 11 મહિના અને 18 દિવસનો સમય લાગ્યો હતો. 26 નવેમ્બર 1949 ના બંધારણ સભાએ બંધારણ સ્વીકાર્યું અને 26 જાન્યુઆરી 1950 ના રોજ બંધારણ અમલ है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ. भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ. है प्रीत जहाँ की रीत सदा. हो हो कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है. जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ. भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ. है प्रीत जहाँ की रीत सदा. हो 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 हो. जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है. जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है. इतने पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ. भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ. है प्रीत जहाँ की रीत सदा. हो 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 हो. Thank you. सबसे प्यार
प्यारी सुबह तेरी सबसे रंगी तेरी शाम तुझ पे दिल कुर्बान तू ही मेरी आरज़ू तू ही मेरी आबरू तू ही मेरी जान माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू तुझ पे दिल कुर्बान तू ही मेरी आरज़ू तू ही मेरी आबरू तू ही मेरी जान छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम फिर भी है यही तमन्ना तेरे झड़ों की कसम हम जहाँ पैदा हुए उस जगह निकले दम तुझ पे दिल कुर्बान तू ही मेरी आरज़ू तू ही मेरी आबरू तू ही मेरी जान ए मेरे प्यारे वतन ए मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान Thank you. Good morning. I Deepa Vekaria from MBA department. First of all, I would like to wish you Happy Republic Day. I hereby to discuss on rights of Indian citizens. It is an important day for the Indians today. When a few fellow Indians talk about the fear of losing basic rights that the Constitution has given, this day become more important. Although we have celebrated Republic Day as a national festival since our childhood, but we understand the real importance of this day when we grow up. We celebrate Republic Day in India on 26 January every year because the Constitution of India came into force on this day. We have been celebrating Republic Day of India continuously since 1950 because the Constitution of India came into force on 26 January 1950. Republic means the supreme power of the people living in the country, and only the people have the right to choose their representative as political leaders to lead the country in the right direction. Therefore, India is a republic country where the people choose their leader. Indian Constitution is to pursue individual liberty and democratic principles based on equality of all members of society. Rights recognized by the Indian Constitution: the right to equality, the right to freedom, the right to against exploitation, the right to freedom of religion, culture and educational rights, and right to constitution remedies. Sardar Vallabhbhai Patel is
considered as the chief architect of fundamental rights of Indian Constitution. The fundamental rights are defined is Part 3 of Indian Constitution from Article 12 to 35 and applied irrespective of race, place of birth, religion, caste, creed, gender and equality of opportunity in matters of employment. These provisions set out in Part 4 of Constitution are not enforceable by the courts, but the principles on which they are based are fundamental guidelines for governance that the state is expected to apply in framing policies and passing laws. As Indian citizens, we are also fully responsible for our country. We should make our slaves regular and the news and be aware of the happenings in the country. What is happening right and wrong, what our leaders are doing, and first of all, what we are doing for our country. The fundamental duties are defined as the moral obligations of all citizens to help promote a spirit of patriotism and to uphold the unity of India. Now I am going to end of my speech with these words. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत. मैं भारत हूँ, मुझे वेदों की ऋचाओं ने जन्मा है. मैं ऋषि मुनियों के आश्रम में पला हूँ, योग पुरुषों की उंगली थामे चला हूँ और प्रचंड अग्नि में जला हूँ. आज मानचित्र पर जो मेरी छवि है, मैं पहले से ऐसा नहीं था, टुकड़ों टुकड़ों में कटा हुआ था. और एक दिन तक्षशिला में जन्मे मेरे पुत्र ने अपनी शिखा खोल दी और वहीं से मेरे अखंड राष्ट्र बनने का निर्माण हुआ. बिहार से बलूचिस्तान और कश्मीर से गांधार तक का विस्तार फैल गया. मेरा विस्तार दुनिया को अचंभित कर रहा था. मेरे एक हाथ में लटकती हुई तलवार थी तो दूसरी तरफ गले से मेरे महावीर और बुद्ध की वाणी फैल रही थी. मुझे कृष्ण के विचार हमेशा से याद है. कृतम में दक्षिणे हस्तो जयो में व्यस सव्यहिता. एक हाथ से मैं कर्म करूंगा तो दूसरे हाथ में विजय अवश्य होगी. मैंने अपना काम धीरे धीरे कर्मयोग के कर्म से शुरू कर दिया और मुझे धीरे धीरे सोने की चिड़िया कहा जाने लगा. मेरे सोने की चमक सुदूर बैठे हुए लुटारे और आक्रमणकारियों को लुभाने लगी. मेसिडोनिया का वो राजा सिकंदर जो विश्व युद्ध पर निकला था, वो मुझ तक आ पहुंचा. मुझे जीतने ही वाला राजा पोरस उसके आगे दीवार बन के खड़ा हो गया. साम्राज्य का भूखा गिद्दड़ मेरे मांस का एक टुकड़ा भी नोच नहीं पाया. पर सिकंदर आखिरी नहीं था. महमूद, अरब, तुर्क और मुगलों भी आए. वे शमशीरों की चोटें खाता रहा और अतिथि देवो भव गुनगुनाता रहा. ये शांति देखकर 7 समुंदर पार करके आने वाले अंग्रेजों के लिए वरदान बन गई. और जो राजा के दरबार में नाक रगड़ता था, आज राजसत्ता का वो मालिक बन गए. पूरी दुनिया के घर में माँ सदा रोटी बनाती है. वही माँ भाग्यशाली है जो फौजी बनाती है. मैंने ऐसे वीर पैदा किए थे जो रंग दे बसंती चोला गा के फांसी के फंदे पर झूल गए. मुझे आज भी याद है वो लाहौर सेंट्रल जेल जिसमें मेरा बेटा भगत कैद था. फांसी सुनाई गई थी और तारीख नजदीक आ रही थी. भगत ने अंग्रेज सरकार को पत्र लिखा कि मुझे फांसी ना दी जाए. फांसी तो अपराधियों को दी जाती है. मैं तो क्रांतिकारी हूँ. मैं भारत माँ का सिपाही हूँ. मुझे भरे चौराहे पे फांसी गोली मार दी जाए. भगत ने फांसी के फंदे को ऐसे चूमा कि वो अपनी दुल्हन के मेहंदी से रंगे हाथ को चूम रहा हो. उसके आगे मेरी बेटी वीर रानी लक्ष्मीबाई अपने दूध मुहे बच्चे को पीठ पे लिए ऐसे लड़ पड़ी कि अंग्रेजों के लाल वर्दियों के धागे खोल दिए. मेरा एक और पुत्र जिसने अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों के साथ एक पिस्तौल लिए सभी अंग्रेजों के सामने लड़त लड़ी. जब पिस्तौल में एक ही गोली बची थी तभी वो मेरे चरणों पर भेंट चढ़ गया. 25 वर्ष का वो जवान मेरे आजाद मुझे छोड़ गया. चलो जवानों, खत्म करो अब बारूदों के साथ मसूदों हाफिजों को. भारत का अब कोई जवान तिरंगा में ना लेटेगा. अब तो बारी बारी हम उसको जन्नत भेजेगा.
लेकिन कमबख्तों ने हमें खून के अस्क रुलाए हैं। देश का नक्शा बड़ा हुआ है जब जब हम बिगड़े हैं। देश का नक्शा बड़ा हुआ है जब जब हम बिगड़े हैं। भारत माँ के शेर है हम, शेरों की तरह ललकार करो। ए दुश्मन तेरे देश में जितनों की आबादी है, ए दुश्मन तेरे देश में जितनों की आबादी है, उतने तो भारत माँ के मरने को राजी है, उतने तो भारत माँ पे मरने को राजी। ભારતીય બંધારણમાં 395 આર્ટિકલ્સ એન્ડ 8 શેડ્યુલ આવેલા છે। આપણું બંધારણ એ 22 અલગ-અલગ ભાગોમાં વહેંચાયેલું છે। આ ઉપરાંત આપણું બંધારણ આપણા નાગરિકોને 6 મૂળભૂત અધિકારો આપે છે, જેવા કે સમાનતાનો અધિકાર, સ્વતંત્રતાનો અધિકાર, શોષણ વિરોધી અધિકાર, ધાર્મિક સ્વતંત્રતાનો અધિકાર, શૈક્ષણિક અને સાંસ્કૃતિક અધિકાર, બંધારણીય ઇલાજનો અધિકાર એવા કેટલાક મહત્વના અધિકારો આપણું બંધારણ આપણને પ્રદાન કરે છે। આપણું બંધારણ અલગ-અલગ રિલિજન, કાસ્ટ, ક્રીડ, જેન્ડર અને ટ્રાઇબલ વિશેની તમામ ઝીણી-ઝીણી બાબતોને પણ આવરી લે છે, જેના કારણે આપણું ઇન્ડિયન કોન્સ્ટિટ્યુશન એ લેન્થીએસ્ટ એન્ડ ડિટેલ્ડ કોન્સ્ટિટ્યુશન છે। જેમ મનુષ્યના જીવનમાં પરિવર્તન અગત્યનો ભાગ ભજવે છે, એ જ રીતે દેશના સંચાલનમાં પણ પરિવર્તન આવે છે। चेहरे पर फेसबुक से रौनक है, चेहरे पर फेसबुक से रौनक है और दिल व्हाट्सएप हुआ जा रहा है। ये इंसान समाज से अलग होकर भी सोशल हुआ जा रहा है। એટલે જ તો સાયબર ક્રાઇમ થયો ને। જેમ જેમ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ વધતો જાય છે, તેમ તેમ તેનાથી થતા ગુનાઓ સામે આવે છે અને તે ગુનાની સામે ન્યાય મેળવવા માટે અનેક કાયદા ઉમેરવામાં આવે છે, જેમ કે સાયબર સિક્યુરિટી। अशिक्षित को शिक्षा, अशिक्षित को शिक्षा और अज्ञानी को ज्ञान, अशिक्षित को शिक्षा और अज्ञानी को ज्ञान, ज्ञान से ही बन सकता है भारत देश महान। આ તો તું રાઇટ ટુ એજ્યુકેશન ની વાત કરે છે ને? યસ ઓફ કોર્સ। રાઇટ ટુ એજ્યુકેશન એક્ટ અમેન્ડમેન્ટમાં 2002 માં આવ્યો છે અને જેના દ્વારા આપણે કહી શકીએ કે ભારતમાં સાક્ષરતા મિશન હવે પ્રારંભ થયું। આવો જ એક અગત્યનો એમેન્ડમેન્ટ છે, જે છે રાઇટ ટુ ઇન્ફોર્મેશન। રાઇટ ટુ ઇન્ફોર્મેશન એ એક્ટ 12 ઓક્ટોબર 2005 માં અમલમાં આવ્યો હતો। આ એક્ટ અનુસાર ભારતીય નાગરિક સરકારના કામ અંગેની માહિતી મેળવી શકે છે તેમજ સમીક્ષા પણ કરી શકે છે। રોજની લગભગ 4800 to 5000 એપ્લિકેશન ફાઇલ થાય છે। ખરેખર આપણા દેશનું બંધારણ એ આપણને મળેલી મહામૂલ્ય ભેટ છે, કારણ કે આપણા દેશના બંધારણ દ્વારા કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં નાગરિકોના પ્રશ્નોનો ઉકેલ લાવી શકાય છે। જેથી જ તો કહેવાય છે કે આપણા દેશનું બંધારણ એ વિશ્વનું સર્વશ્રેષ્ઠ। સુજલામ સુફલામ મલયજ શીતલામ સસ્ય શ્યામલામ માતરમ। સુજલામ સુફલામ મલયજ શીતલામ સસ્ય શ્યામલામ માતરમ। વંદે मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। एहसास थोड़ा तो जगाए अपने दिलों में यारो, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। क्या नाम है अपना जहां में, खड़े हैं कहाँ पे हम, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। हे हमें जाना कहाँ और चले हैं कहाँ पे हम, हमसे पूछे है मादरे वतन, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे। जाना है तारों से आगे अब ना रुकेंगे हम, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। एक नई सुबह जगाए सारे जहां पे हम, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। हिम्मत करे आगे बढ़े हम नए रास्तों पे हम, सारी दुनिया विवाद है वतन, वंदे मातरम 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 वंदे मातरम
वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम एहसास थोड़ा तो जगाए वंदे मातरम वंदे मातरम क्या नाम है अपना जहां में वंदे मातरम वंदे मातरम एक नई सुबह जगाए वंदे मातरम वंदे मातरम इंतजार है जहां को तलवारों पे सरवार दिए अंगारों में जिस्म जलाया है तब जाके कहीं हमने सिर पे ये केसरी रंग सजाया है हो 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 अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस मुंह से निकल के खून कहे तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू हो 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 सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका ए वतना वे मेरे वतना वे तेरा मेरा प्यार निराला था कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू हाँ हाँ मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो ओ मई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आँख से दरिया बहता है तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा
तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। How would you feel if I tell you that the government will give you 1,000 rupees for free without any conditions, and not only for once, the government will give you money every month. Not only you, but your family, friends and all citizens. Some people think that this is not possible, but let me tell you, this is an economic policy which is seriously being concerned in many countries of the world today. Greetings of the day and happy Republic Day to all my dear friends. Today I Chetan Dhodakia from MBA department, and I hereby to discuss on the topic universal basic income is the only way to reduce poverty. India is the cradle of human race, the birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of legends and the great grandmother of a tradition. But it will no elaboration to say that nearly 68.8% of the total Indian population lives on $2 per day. वो राम की खिचड़ी भी खाता है, वो रहीम की खीर भी खाता है। वो राम की खिचड़ी भी खाता है, वो रहीम की खीर भी खाता है। वो भूखा है जनाब, उसे मजहब कहाँ समझ में आता है, उसे मजहब कहाँ समझ में आता है। Poverty is not a natural disaster like an earthquake that just happens, but result of a lack of community and inequalities. Actually, the income is a public inheritance that everyone should be entitled to, and this will only be possible if the economic policy called UBI, Universal Basic Income, is implemented, not only in India but in every country in the world. Some people think that what is the need of government to give the money for free? But most important reason of doing is the job losses that are happening and will happen due to automation and artificial intelligence. Believe me, the results of UBI are going to be fascinating. The nutrition level of the families and particularly children will go up, and it will be improvement in the educational outcomes. And we all know very well that without education, thinking of employment and living livelihood is next to impossible. Along with education, people will get food, shelter, healthcare and whatever is necessary for bright future. But I have a doubt, what is the need of giving money to a person who is already rich? The money from the basic income for the super rich person is just useless. So in my opinion, the government should selectively choose people to head out this income in order to reduce poverty. I have to say a lot on this amazing topic, but the time is running out. I would conclude by saying, yes, I agree that UBI is now best possible way to reduce poverty, but the youth of the country should not be dependent on anybody for anything. करना है तो समंदरों में तैरिए, नालों में क्या रखा है। प्यार करना है तो देश से करिए, औरों में क्या रखा है। 365 દિવસોમાંથી સમગ્ર ભારત દેશવાસીઓ માટેના પોતાના જીવનકાળ દરમિયાનના મહત્વના અને ગૌરવવંતા બે દિવસો હોય તો એ છે આઝાદી અને ગણતંત્ર દિવસ. It's said that we love to live our life and our thoughts by our own way because we wanted to be a king of ourselves. But wait a minute. This line may be feasible for us today due to independence of 1947. Before this, it was an unrealistic dream to live these lines. So pleasing to our eminent freedom fighters such as Gandhiji, Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Sarojini Naidu, Surya Sen, who didn't saw at their status, power, livelihood. They saw that was Mother India and her children get enslaved, tortured, harassed by a Britishers. But after independence, symbol was generated in whole nation to handle any deal, heal, cure of any citizen with a systematic way was not found in the hand of anyone. So, a team of an elected people with Dr. B.R. Ambedkar sir
was formed to give us a set of rules to live our livelihood in a lap of Mother India, which was called a Constitution of India, and it was regulated on 26 January 1950. It was made for people to able to select their own leaders instead of king's rule, so that the leaders works on benefit of his people. As the time of clock passed, corruption played a big role with focused on their own benefits instead of country's benefits, which forbidden the growth and progress of our nation. It is something like freedom from lion's cage and went into a tiger's cage without our knowledge. એક વખત ડોક્ટર કલામ સરને પૂછવામાં આવ્યું કે ભારત દેશની સૌથી મોટી શક્તિ અને નબળાઈ શું છે, ત્યારે તેમને ખૂબ જ સરસ સુંદર જવાબ આપેલો કે યુવા એ દેશની શક્તિ છે, જ્યારે યુવાનું વિઝન તે દેશની નબળાઈ છે. જ્યારે આજના સમયમાં યુવા ઉપર દેશના વિકાસની, રાષ્ટ્રના એકતાની જવાબદારીઓ છે, ત્યારે એ યુવા એના કોમલ મુલાયમ હાથે 4x4 ઇંચના ફોન પર રંગબેરંગી ઇમોજી મોકલવામાં ગૂંચવાઈ ગયેલો. દેશ કહેતા હૈ આપસે कि कर ले अपना कार्य हर पल ईमानदारी, मेहनत, नैतिकता और लगन से, न तो किसी को अपमानित, खंडित और लज्जित कर अपना पेट पर. आज के इस दिन पर सलाम है उन वीर जवानों और स्वतंत्र सेनानियों को जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण गंवाए. अभिवंदना है उन जवानों के लिए जो आज भी देश की सरहद पर सुरक्षा के लिए डटे हैं. और आओ याद करें भारत की भव्यता, दिव्यता और सुंदरता को इस दिन पर. और अंत में मैं कहना चाहूंगा आप सबसे, शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ. शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ. आओ सलाम करें इन वीरों को जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ, भारत गणतंत्र हुआ. गणतंत्र दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं. जय हिंद, जय भारत. Freedom in mind, faith in words, pride in our hearts, and memories in our soul. So let's celebrate and salute the nation on Republic Day. આ ગણતંત્ર દિવસની ઉજવણી માટે હું મેઘના મહેતા and કોમલ મહેતા ગાડી વિદ્યાપીઠ પરિવાર વતી આપ સૌને આમંત્રણ આપીએ છીએ. The performance which you watch ranked the top 10 performance of each and every category. To celebrate Republic Day and getting idea about the results of the competition, join us on Gardi Vidyapit at 9 o'clock onwards. Jai Hind, Jai Bharat.